in last class we completed joint stock company, we completed, right? We completed the features of the company. Features of company हो गया, company का क्या meaning है, ठीक है? So case study जो है, case, right? And we completed one case study of Solomon versus Solomon and Company Limited, right? In today's class, we are going to complete that. What is the meaning of private company? What is public company? First of all, we are going to do the functions करेंगे, and after that, we are going to complete the differences between the public and private company. In the last class, I started directly differences, right? But in today's class, we understand that what is private company, क्या होता है और उसके क्या-क्या features है, वो हम करेंगे और उसको अच्छे से लिखना है आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद जो पेज में मैं आप लोगों को डिफरेंसेस जो आप लिख रहे थे ना, उस पेज को छोड़ दो, एक पेज को छोड़ दो, ठीक है? बाद में उस डिफरेंसेस को हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करो कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी से हम शुरू करते हैं, ओके? चलिए, और एक केस स्टडी जो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ कंपनी, कौन मुझे फीचर्स बताएगा कंपनी का? Who is going to tell me about the features of company? Online class, offline class, offline class. Who is going to tell me about the features of company? Limited liability. Good. Anyone else? Okay, Pratyay, tell me. एक बताओ फीचर, आप एक फीचर बताओ। मैम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है मैम, लिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रत्यय। वो नहीं है मैम, लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए, बैच 1 रोल नंबर 86 मनीष, एक बताइए मुझे फीचर्स कंपनी का। मैम परपेचुअल सक्सेशन, प्रत्यय टेल मी। परपेचुअल सक्सेशन, मनीष वेरी गुड। नेक्स्ट प्रत्यय बताइए। मैम लिमिटेड लायबिलिटी मैम। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अनीशा। यस मैम, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी गुड। माही। मैम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स from the capital is divided into parts and each parts is called shares. Very good. Roll number 75 batch 1. Yes ma'am. Feature. Common seal. Common Official seal. signature of company. Very good. Next Gaurav. मैम corporate finance, Very good. Batch 1 roll number 80. मैम separate legal entity, Very good. 39 roll number Abhinav. Ma'am, formation procedure. Formation procedure, हाँ, we can take it as. Roll number 49 Ankit. Ankit या Anku, I don't know, but A-N-K I am. Yes ma'am, Anku. Okay, yes Anku. Okay. Separation of ownership and control. अंकु है मैम। Okay. Next roll number 3 Komal. Ma'am, transferability of shares. Very good. So I get एक पॉइंट सबको याद होगा, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है? कॉमन सील, ठीक है? उसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो बहुत सारे मतलब 6-7 जो है, बिल्कुल। फॉर्मेशन प्रोसीजर, ये जो भी ये सारे फीचर्स है, ये सबको पता है? एवरीवन, सबको लर्न हो गया है? ठीक है। चलिए, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट टू कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? कंपनी का डेफिनेशन लिखा था, वैसे ही प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन है वो एक सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप लोग को लिखने का मन हो तो सेक्शन लिखिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। दैट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68, 2 सबसेक्शन 68 में डेफिनेशन गिवन है किसका? प्राइवेट कंपनी का, ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी क्या है? दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 का सबसेक्शन 68, ठीक है? तो उसमें आप लिखिए, इसमें
private companies are those companies whose articles of association, AOA, articles of association restrict. Private companies are those companies whose articles of association, private companies are those companies whose articles of association restrict the transferability of shares, and prevent, prevent the public at large, restrict the transferability of shares and prevent the public at large from subscribing to them, and prevent the public at large from subscribing to them. ठीक है. सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भाई प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनीज होंगी जिसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, देखो दो चीज इसमें होता है, एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ये दोनों क्या है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार मतलब 15 मिनट का कंसेप्ट है, खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोनों, लेकिन शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. बस इतना जान जाओ कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये आपके क्रेडिटर से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना, एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज पॉलिसीज बनाना वो एमओए में होता है, और एओ में होता है आपका इंटरनल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम. इसमें एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल पार्टीज को हम इंक्लूड करते हैं, उसके सिस्टम मेंशन होते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर से रिलेटेड, आपके मीटिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें आपके एओए में मेंशन होती है. तो किसी हर एक कंपनी का दोनों होता है, एमओए भी होता है और एओए भी होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मतलब प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. किस चीज का मतलब शेयर्स को आप सब्सक्राइब नहीं करवा सकते, पब्लिक को आप शेयर्स नहीं दे सकते. दिस इज नोन एज द प्राइवेट कंपनीज. ये क्या होती है? ये प्राइवेट कंपनीज. सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी? एक चीज याद रखिएगा हमेशा, सेक्शन नेक्स्ट आगे मतलब लिखना नहीं है, सुनो. ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम 200 नंबर हो सकते हैं. ठीक है, 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट OPC, 1% कंपनी. 1% कंपनी जो है वो 2013 के बाद लीगल कंपनी में आ गया है, OPC. ठीक है, खैर इसमें जो कंपनीज एक्ट बना है उसमें आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारा चीज है. ठीक है, फॉरेन कंपनी, वो सब इंक्लूडेड है इस बार जो 2013 वाला आया है. तो लेकिन हम पब्लिक और प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो जो ओपीसी होता है 1% कंपनी, उसको छोड़ के जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सब में जो मेंबर्स की लिमिट क्या होगी? 200. और मिनिमम कितने हो सकते हैं? हाँ, ओपीसी में 1 होगा, ऐसे प्राइवेट में कितना होगा? 2. क्लियर हो गया? कितना होगा? 2. कितना होगा? 2. ठीक है. उसके अलावा जो ये आपका पेड अप कैपिटल था, इसमें पहले तो 1 लाख रुपए था कि 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले जो आपका 1956 था, सुनो तो 1956 वाले में पहले 2 लाख था कि प्राइवेट कंपनी का 2 लाख होना चाहिए. अब था बीच में 2013 वाला है 1 लाख. अब वो भी मिनिमम क्राइटेरिया हटाते गए, यानी 1 लाख भी पेड अप कैपिटल की जरूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए, लेकिन 1 लाख से कम भी हो सकता है. ठीक है, तो अब ये चीज हट गया अमेंडमेंट में कि कोई भी लिमिट नहीं लगा है प्राइवेट कंपनी में, कितना रुपए भी आपका पेड अप कैपिटल हो सकता है, आपका ऑथराइज कैपिटल. ठीक है, जितना रुपए से आपने कंपनी शुरू करना. ठीक है, जितने रुपए से कंपनी शुरू करना इनिशियल स्टेज. सब सिर्फ सारे लोगों एम्प्लॉय सब लोगों को मिला के. ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं
कि ये 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट क्या बोलते हैं, जिसमें बदलाव जिसको कहते हैं। तो कोई भी सेक्शन में जैसे बदलाव आता है ना कोई भी चीज में, तो उसको कहते हैं हम अमेंडमेंट। तो 2015 में अमेंडमेंट आया, 2013 के बाद ना 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है कंपनीज लॉ। तो 2015 में अमेंडमेंट आया, उसके बाद जो 1 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत थी ना, वो भी 1 लाख रुपए कैपिटल मिनिमम क्राइटेरिया भी हटा दिए गए। याद रखना, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज देयर in the case of the private company, and it was basically because of the amendment of 2015. याद रहेगा, 2015 के अमेंडमेंट के बाद वो 1 लाख रुपए वाला सिचुएशन हटा दिया गया। ठीक है, अब कुछ फीचर्स लिख लो। व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनीज के क्या क्या फीचर्स? व्हाट आर द वेरियस फीचर्स? लिखिए। So first feature, no minimum capital required. First feature is no minimum capital required. ध्यान से सब लोग सुन लीजिए एक बात। चलो, so no minimum capital required, इसमें लिखिए there was a minimum paid up share capital. There was a minimum paid up share capital requirement. There was a minimum paid up share capital requirement of rupees 1 lakh previously. Of rupees 1 lakh previously. 1 lakh previously, comma, but that is omitted now. There was a minimum paid up share capital requirement of rupees 1 lakh previously. पहले था 1 लाख रुपए previously, अब कॉमा देके लिखिए but that is omitted now. But that is omitted, OMMITED, omitted now, यानी अब वो हटा दिया गया है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा अमेंडमेंट ऑफ 2015, बस ये लिख लीजिएगा। उसके बगल में जो मैंने लिखवाया है ना बट दैट इज ओमिटेड नाउ, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखिए अमेंडमेंट ऑफ 2015, यानी कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद मिनिमम 1 लाख रुपए जो था पहले उसको भी हटा दिया गया। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड फीचर, पहले 1 लाख रुपए जो अमाउंट था ना, मिनिमम 1 लाख रुपए आपको रहना चाहिए आपका 1 लाख बिजनेस को, कंपनी को शुरू करना। हाँ, मतलब शेयर इशू वगैरह, मतलब जो भी है आपका, मतलब शेयर कैपिटल का मतलब वो वैसा कैपिटल जिससे आपने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अमाउंट जिसके साथ आपने इन्वेस्ट किया, हाँ इन्वेस्टमेंट किया हो। अब वो 1 लाख रुपए का सिचुएशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, सेकेंड लिखिए, सेकेंड फीचर, minimum two and maximum 200 members. Minimum 2 and maximum 200 members. ठीक है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इसके अंदर में पॉइंट लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि 2 लोग चाहिए या मैक्सिमम 200 लोग। और इसके बस ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट OPC 1 person company, except OPC 1 person company, यानी 1 person कंपनी को छोड़ करके प्राइवेट कंपनी में जो भी मतलब जितने भी मेंबर होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे मिनिमम या फिर 200 होंगे मैक्सिमम। क्लियर, डन। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड। Transferability of shares restricted. Transferability of shares restricted. Transferability of shares restricted. Transferability of shares restricted. लिख लिया? Next, transferability of shares restricted में लिखिए private companies cannot freely transfer. Private companies cannot freely transfer their shares to the public
like public companies. Private companies cannot freely transfer their shares to the public like public companies. This is why stock exchanges never list private companies. This is why stock exchanges never list private companies. यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सी आएगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब में कभी भी प्राइवेट कंपनीज आपको लिस्टेड नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करती है पब्लिक को लाइक पब्लिक का। क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर? नेक्स्ट, privileges and exemptions. Privileges and exemptions. ठीक है, चूंकि प्राइवेट कंपनी इज नॉट एबल टू ट्रांसफर देयर शेयर्स फ्रीली, ठीक है, एंड and not involved in the limited interest by the members, the law granted several exemptions that public company do not enjoy. Yani ki the private companies have some exemptions, and the exemptions is not, since private companies do not freely transfer their shares and involve limited interest by members, the law has granted them several exemptions. Since private companies do not freely transfer their shares and involve limited interest by members, comma, the law has granted them several exemptions. The law has granted them several exemptions that public companies do not enjoy. ठीक है, अब जैसे कि ओके, सो यहाँ पर क्योंकि शेयर जो है वो ट्रांसफर करने का राइट नहीं है प्राइवेट कंपनीज का, तो लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट देते हैं, और वो एग्जाम्पशंस है रिलेटेड विद द सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके तहत पब्लिक कंपनीज का जो ऑडिटिंग एंड ऑल होता है उसमें कुछ एग्जाम्पशंस और छूट मिला हुआ है आपके प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, जशवंत फोन नीचे रखिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के कुछ टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं प्राइवेट कंपनीज का? लिखिए, there are three types डिपेंडिंग ऑन देयर मेंबर्स लाइबिलिटी, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटीज को देखते हुए तीन तरीके की कंपनीज हैं। मेंबर्स की लाइबिलिटीज को देखते हुए तीन तरीके की कंपनीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स। अब पता है ना कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? ज्यादातर एम्प्लॉइज के हाथ में शेयर्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक के हाथ में शेयर्स नहीं होता है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा? जो लाइबिलिटी होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे आपकी कंपनी में, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना उनके पास शेयर है। ठीक है, यानी जितना उनके पास शेयर है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। और जो अमाउंट दैट इज अनपेड टू द कंपनी, मान लीजिए कि किसी ने 50,000 रुपया का शेयर लिया, ठीक है, और 50,000 में से मान लो उसने सिर्फ 25,000 रुपया ही पे किया किसी एम्प्लॉय ने, तो 25,000 रुपए जो बचा हुआ है वो अमाउंट
और जितना अमाउंट उसने दे रखा है, यानी कि टोटल 50,000 का जो शेयर ले रखा है, इतना ही उसका लाइबिलिटी होगा। तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जो अनपेड अमाउंट होगा वो भी आपकी लाइबिलिटी में ही काउंट होगा, यानी वो भी आपने दिया नहीं है ना कंपनी को, लेकिन वो भी आपकी लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? ऐसा नहीं कि 25,000 का पे किया और कभी कोई लॉस हुआ तो 25,000 पे ही कैलकुलेट होगा, नहीं, ये पूरे पे होगा, जो अनपेड अमाउंट है उस पे भी और जो पेड अमाउंट है उस पे भी। आगे बात समझ में? तो इसमें लिखिए क्या शेयर्स क्रेडिट पे क्यों मिलेगा? हाँ कह सकते क्रेडिट पे मिलेगा। एम्प्लॉइज मतलब एक तरीके से लोन तरीके से दिया हुआ है ना, आपने आधा पैसा नहीं दिया, आपने आधा पैसा दे दिया, ठीक है। तो इसमें दोनों जो अमाउंट होगा ना, ये दोनों अमाउंट ही आपके किस पे चला जाएगा, ये आपके लिमिटेड, मतलब जितना शेयर्स होगा उतने पे आपकी लाइबिलिटी होगी। तो इसमें लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय शेयर्स में लिखिए, ये जो टाइप्स ऑफ कंपनी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, यानी जितने मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी को देखते हुए 3 तरीके की प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहला कौन सा है? तो फर्स्ट वाला है दैट इज लिमिटेड शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो इसमें लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to the amount, लिखिए the liability of the members is limited to the amount unpaid to the company with respect to the shares held by them. The liability of the members is limited to the amount unpaid to the company with respect to the shares held by them. यानी जितना शेयर्स होगा, जितना अनपेड अमाउंट होगा, जितना शेयर्स का आपने पैसा नहीं दिया है, वो सारा आपका किसमें आएगा? मतलब लाइबिलिटी हो, उस पे आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी हो। कल को अगर कंपनी डूबेगा तो उस आपका पैसा भी डूबेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं जाए। सेकेंड है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है। जो लिमिटेड बाय गारंटी में जो मेंबर्स जो हैं आपके प्राइवेट कंपनी के, वो गारंटी देंगे कि भाई अगर कंपनी कल को खत्म होता है, डिसॉल्व करवाया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 10 लाख रुपए कैश देंगे। यानी कि यहाँ पर आप एक अमाउंट को फिक्स करते हैं कि अगर आपका कंपनी क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए भाई हम डिसोल्यूशन के टाइम पे कैश में पेमेंट करेंगे। तो इसको कहते हैं गारंटी के द्वारा, ये बेसिकली क्या लिमिटेड होना, लिमिटेड बाय गारंटी। The amount which we committed to payment at the time of dissolution, that guarantee is given by the members, इसी को कहते हैं limited by guarantee। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? इसमें लिखिए here the members liabilities are limited to the amount of money they guarantee to pay in case the company is wound up. Here the members liabilities are limited to the amount of money they guarantee to pay in case the company is wound up। यानी कि अगर मान लो कि अगर किसी कंपनी में 10 लोग हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, तो इसमें से कोई मेंबर ये कहता है कि भाई अगर कंपनी को वाइंड अप करा दिया, यानी कंपनी को खत्म करा दिया, ठीक है, खत्म हुआ, तो मैं जो अमाउंट है ना वो 10 लाख रुपए दूंगा वाइंड अप के टाइम पे। अगर क्रेडिटर वगैरह किसी को भी पे करने के लिए, तो 10 लाख रुपए मेरे तरफ से अमाउंट होगा। तो अब इसकी लाइबिलिटी इस 10 लाख रुपए की ही होगी कि भाई ये 10 लाख रुपए देगा कब? जब कंपनी आपकी बंद हो जाए।
तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब यू आर गिविंग गारंटी दैट व्हेन द कंपनी जो खत्म होगा तो हम भाई इतना पैसा देंगे। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोलते हैं? क्लियर? सबको ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास? चलिए यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जितना शेयर्स आपके पास है उतना आपके पास लायबिलिटी है। गारंटी यानी जब कंपनी डूबेगा तो या कंपनी खत्म, डिसॉल्व नहीं होता है, कंपनी वाइंड अप होता है। देखो डिसॉल्व होना वाइंड अप में अंतर होता है। वाइंड अप इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनल डिसोल्यूशन इज समथिंग जैसे आप बैंकरप्ट हो गए, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। सो वाइंड अप के टाइम पे पैसा देंगे, वो गारंटी। अब एक आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है किसी किसी केस में प्राइवेट कंपनी में, जहां पर जो लायबिलिटी होगा मेंबर्स का वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। इस टाइप की प्राइवेट कंपनीज में लायबिलिटी जो होगा किसका? आपका अनलिमिटेड होगा, मेंबर्स का। लेकिन ये सारे एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब जो टाइप्स है दैट इज इन द एक्सेप्शनल, ठीक है, ठीक है। पर्सनल एसेट्स भी जो मेंबर्स के होंगे वो अटैच रहेंगे उस कंपनी के साथ और उसको सोल्ड कर दिया जाएगा इन द केस ऑफ वोडा। तो ये देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। और तुम लोग को होमवर्क ये है कि इंडिया में कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बताओगे। क्लियर होगी बात? क्या समझ आया? ठीक है। और इंडिया में वैसी कंपनीज है भी या नहीं, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में कौन बताओगे? ठीक है। या एक काम करो, टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है ना, शेयर्स वाला तो आई थिंक सब मेजॉरिटी शेयर्स वाली कंपनीज होती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। ये तीनों में जो भी आपके, यस लास्ट बेंच फोन रखिए, ऊपर ऊपर रखो, ऊपर रखो। अनलिमिटेड लायबिलिटी में लिखिए द लायबिलिटी, ये आप लोगों को होमवर्क है कि जो तीनों टाइप की प्राइवेट कंपनीज हैं इसके बारे में मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे नाम के साथ कि मैम ये कंपनी है जिसका शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, इनका गारंटी और इनका अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये हाँ तीन ही टाइप, तो ये मुझे बताओगे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ऑन ट्यूसडे। क्लियर है ना? और अगर नहीं पता, नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी में लिखिए द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स is unlimited, the liability of members is unlimited in this type of private companies. The liability of members is unlimited in this type of private companies. This type of private companies. आगे लिखिए, लिख लिया? The liability of members is unlimited in this type of private companies. लिख लिया? और अगर ज्यादा लिखने में दिक्कत होती है तो ऐसे लिखा करो, PVT, ठीक है। आगे लिखिए पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर्स, पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर्स कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड when the company is being wound up, when the company is being wound up, is being wound up. The liability of members is unlimited in this type of private companies. Personal assets of members can be attached and sold when the company is being wound up. यानी कंपनी जब wound up होगा तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है यहाँ पर भी पर्सन की अपनी जो भी पर्सनल एसेट होगी वो यूज हो जाएगी। तो ऐसी कितनी सारी कंपनीज इंडिया में है, 3-4 का नाम बताना मुझे, ठीक है। होमवर्क समझ में आया सबको? अब थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं। जो 1% कंपनी जो है, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गया, फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज हो गया, प्राइवेट कंपनी क्या है वो हो गया। किसी को कुछ पूछना इन तीनों में? चलिए